In India's unorganized sector, a large number of women are low-wage workers in farms, construction, street vending, and collection of forest produces. On an average, Indian women spend over 44 hours a week doing unpaid domestic work and caregiving activities. In Jharkhand, one of the poorest states in India, rural women work in their own fields as agricultural workers, collect forest produce to sell in weekly markets or own small shops. Many also migrate to other states to work in bricklands and garment factories, at construction sites and as domestic workers. They face violation of rights, harassment, and are often forced to work in unsafe workplaces. Organized protest is rare. कोविड में ये हुआ कि काफ़ी महिलाओं के साथ में कई सारे चैलेंजेस की, अगर हम महिलाओं के चैलेंजेस को देखें तो वो अनसेफ रहीं। उनके साथ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई जो हम न्यूज़पेपर में बहुत कम पाए कि भाई वो जब रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि अपने कामकाज से सबसे पहले तो काम बंद हो गए, चाहे वो अपने घर पे कर रहे हों लोकल पे रह के या फिर माइग्रेंट्स थे, पलायन करते थे। ये सारी समस्याओं को जब श्रमजीवी ने देखा तब वो इस पर आई कि उनको गेट डब्ल्यू के साथ कि हम एक कामकाजी महिलाओं के ऊपर में काम करेंगे, उनके सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए। Sunita Jamuda lives in Jhadgaon village of Sonua block in Jharkhand's West Singhbhum district. Lost her husband a decade ago. Life was not the same anymore. Struggling to make a living, she was forced to migrate to other states for work. Her experience of traveling alone in trains to work as a laborer in bricklands and factories made her understand the vulnerabilities, challenges, and hardships of women migrant workers. पहले तो मेरा पति 2007 में डेथ हो गए, बच्चा लोग छोटा छोटा थे। हाँ, दिक्कत तो बहुत हुई, इसीलिए घर में भी खाने का कुछ नहीं था। घर भी एक ही ठो रूम था जो कच्चा घर था, जिसका दरवाज़ा भी ढंग से नहीं था, उसका टीना का दरवाज़ा लगा हुआ था। उस टाइम हम खाने के लिए भी बहुत ये पड़ता था, तो हम बच्चा लोग को छोड़ के ईटा बनाने जाते थे और जो भी ईटा फिटा बनाते थे उस हफ्ता भर में जो भी पैसा मिलता था उसी से अपना ज़िंदगी बसर करते थे। Like her, Sushma Mahato of Belpos village too went through extreme difficulties after losing her husband. She used to work in her family's agriculture field but was not recognized as a farmer. She demanded her rights but in vain. She had resigned herself to her fate until she met the learning facilitators of श्रमजीवी महिला समिति। पहले भी मतलब बाहरी चीज़ का जानकारी नहीं होता था, घर का ही काम करो, घर में ही रहूं, बाहर जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं मिलता था। महिलाओं को घर में ही रहना पड़ता है, सारे काम पुरुष करते थे, गार्जियन करते थे कि बाहर का सब्जी वगैरह कुछ ज़रूरतमंद चीज़ सब पुरुष लोग गार्जियंस लोग करते थे, क्योंकि हम लोगों को निकलने नहीं देता था। In 2021, Shramajievi Mahila Samiti, a non-profit working in Jharkhand for the rights of women in the unorganized sector, began holding discussions with women workers. In collaboration with the Global Alliance Against Traffic in Women.
The project works with women from marginalized communities in 10 villages of 2 panchayats, Bari and Baljori of Sonua block. The women from different works have collectively formed groups in their villages and a federation at the panchayat level. जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ और उनके पास काम चला गया सब, उनके इनकम भी गिर गए, उनके इस दौरान जो डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जो भेदभाव हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो घर में, घर के बाहर और कम्युनिटी में, और गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह का इनके लिए कोई इस तरह का स्कीम नहीं था, तब ये इनके राइट्स के लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि इनके फेडरेशन बनाया जाए, ताकि वो इंडिविजुअल अगर राइट्स वो क्लेम करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, अगर वो एक संगठित हो के ये राइट्स के ऊपर बात करें तो शायद सरकार भी सुने, समाज भी सुने, जो पंचायती व्यवस्था है वो भी सुने। और हमने जो SMS ने GATW के सहायता से जो हम लोगों ने 2 पंचायत की आप बात कर रहे हैं, वो एक पायलटिंग है इसकी। ये हमारी पायलट जो पंचायत है, इससे काफ़ी CSO सीखा है और काफ़ी आप एक तरह से देख पाएंगे कि झारखंड के अलग अलग जिला में इस तरह का फेडरेशन बनना शुरू हुआ। Every month, the women meet, discuss issues ranging from land rights, labor rights, and safer workplace to domestic violence, witch hunting, and accessing social security schemes. The meetings also give them an opportunity to share their thoughts, family, and work-related issues with other women. जो मांग करने का जो एक साहस होता है ना, वो बढ़ पाया कि कोई हमें लेने आएंगे तो हम पहले मांग रखेंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ सुरक्षा के लिए क्या क्या हम नज़र में रखते हैं। मेरा हेल्थ फैसिलिटी वहाँ मिल पाएगा कि नहीं, हमको रहने का सही फैसिलिटी मिल पाएगा कि नहीं, बच्चे हमारे हैं तो उनको सही जगह मिल पाएगा कि नहीं। तो यहाँ उन्होंने एक चीज़ अपना गुट में, समूह में बना, तो बात उठा कि नहीं, हम लोग शुरू में ही यहीं से तय करेंगे कि हमको लेने वाले लोग वहाँ काम करवा तो रहे हैं, पर मजदूरी दर, दैनिक मजदूरी या मानदेय जो भी देंगे वो कितना देंगे। अगर किसी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करिए तो ये फेडरेशन उसको एक सुरक्षा घेराव देकर उसे सुरक्षित माहौल प्रदान करती है, तो ये एक उनका रोल है। दूसरा, जब अगर वो किसी भी चीज़ के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, अगर कोई सोशल वेलफेयर में उन्हें जाना है तो वो अपने संघ में पहले सभा बैठती है और उस सभा के बाद वो ये निर्णय लेती है कि इस बातों को, जो भी उनका प्रॉब्लम है या फिर जो भी उनकी बात है, जिनको वो लेके ग्राम सभा में रखती है। और ग्राम सभा के साथ साथ क्योंकि हमारी महिलाएं पंचायत समिति की भी सदस्य है, तो वो ब्लॉक तक भी अपनी बातों को रखने के लिए एक कंसल्टेशन करती है। In the meetings, women discuss linkages with social security schemes and they want their voices to be heard in Gram Sabhas and Panchayat development plans. They have been demanding more work opportunities in MGNRGA, equal wages, separate space for women sellers in the local market, and toilet facilities. Sometimes they take the issues to the local police stations, block level offices, and district legal service authority. जब से इन लोग का महिला समूह का ये हुआ है, मैंने सबका अंदर से बोलने का साहस बढ़ गया अभी। पहले वो नहीं था। पहले क्या है कि पुरुष लोग ही आते थे, वो दबा देते, आप लोग जाके क्या कीजिएगा, हम लोग हैं ना, हम लोग करेंगे, आप तो घर का काम संभालिए, अब घर में रहिए, इस टाइप का बात पहले होता था। अब ऐसे नहीं है। महिला लोग उसमें सबसे ज़्यादा तो स्नान घाट, पानी का सुविधा, उसके बाद बैठक करने के लिए चबूतरा या आपका सामुदायिक भवन, उस सब का ज़्यादा मांग रखते हैं। एक हम लोग मानकी मुंडा के साथ में ग्रामीणों का एक बैठक किए थे, जिसमें एक चैप्टर ये चलाने के लिए बोला गया हमारे तरफ से, अगर किसी को मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा हो गया, मारपीट हो गया, FIR होना है, प्रताड़ित हो रही है भाषा से, कद से, रंग से,
तो उसके लिए आप लोग हैं, टीम है। अगर वो FIR तक जाना है तो फिर हम लोग हैं। Gender discrimination is still prevalent in India's labour market. Women workers are paid less wages than their male counterparts for the same work. Moreover, they face harassment in all forms. In Jharkhand, the change has just begun. Women Workers Federation, active in far-flung villages of Sonua, empowers rural women to stand up against any discrimination, raise their voices for equal wages, and demand a safe workplace. संघ में हम लोग जुड़ के हमें अलग तरह का साहस मिला, शक्ति मिला, मतलब हर चीज़ हम लोग कर सकते, ये मेरा हक है बोल के हम लोग को संघ से हमें शक्ति मिली। आज हमको वो लोगों गांव के आदमी भी गर्व करते हैं, हम पर बोलते हैं कि देखो उसका जैसे होकर दिखाओ। अपने अपने वाइफ को भी बोलते हैं कि देखो वो कल कैसे था, आज कैसा है। आज हम सब कुछ अपने बल पर है। जब बचपन में सहेली था तो हम लोग सहेली से अपना दिल का बात, सब माँ बाप ने बता अपना सहेली को सारे चीज़ बताते थे। वैसे ही लग रहा है हमारे संग में, जो हमारा एक सहेली, अपना बहन, अपना दोस्त, मतलब अपनापन वैसे लगता है हमारे संग में मिलके। Undoubtedly, the Federation has empowered them. They are more confident, financially independent, and are striving to create a gender equal society.